اور ابھی آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مراد سعید نے دعویٰ کیا ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں میں آنے لوگوں نے شہباز گل کو گرفتار کیا۔ امپورٹڈ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز گل کو نامعلوم افراد نے بنی گالا چوک سے اغوا کر لیا۔ ایسے حالات میں جب دہشت گرد دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز کی توجہ عمران خان کو کیسے روکنا ہے جیسے مشن پر ہے۔ معیشت کے بعد اب امن و امان بھی شدید خطرات کی زد میں ہے۔ حکومت کا نام دہشت گردی کی مذمت کرنا نہیں، دہشت گردی کی سرکوبی کرنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے فہیم اختر سے۔ فہیم، بتائے گا کیا معلوم ہو سکا ہے، پتہ چل سکا ہے کہ کن افراد نے شہباز گل کو گرفتار کیا ہے؟ جی بالکل، پی ٹی آئی کے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے چیف آف اسٹاف ڈاکٹر شہباز گل کو آج اب سے آدھا گھنٹہ پہلے بنی گالا میں عمران خان چوک کے اوپر اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر دیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کو نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کر دیا ہے۔ شہباز گل کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کی گاڑی کو توڑ پھوڑ کر نشانہ بنایا گیا، اور جو پولیس نے اسلحے کے زور کے اوپر ان کو گرفتار کیا، اور جب وہ بنی گالا سے واپس جا رہے تھے اسلام آباد اپنے رہائش گاہ کے اوپر، تو تب ان کو گاڑی سے اتار کر نامعلوم مقام کے اوپر پولیس جو ہے وہ لے کے چلی گئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہباز گل کے اوپر حساس اداروں کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کرنے کا الزام ہے، اور اسی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کی تحریک انصاف کے لوگ کافی مذمت کر رہے ہیں، اور ٹویٹس کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے اس گرفتاری کی مذمت کی جا رہی ہے۔ لیکن اس بات کو کنفرم کیا ہے جو ہے پی ٹی آئی نے بھی اور اسلام آباد پولیس نے بھی کہ شہباز گل کو اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ بنی گالا میں عمران خان کی رہائش گاہ سے واپسی کے بعد عمران خان چوک ہے تو وہاں سے انہیں گرفتار کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے، اور جس تصاویر اور فوٹیجز بھی سامنے آ گئی۔ اچھا، یہ بتائے گا کیا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا اس حوالے سے کوئی بیان سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کو اب سے کچھ دیر پہلے اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے تحریک انصاف جلد اپنا باضابطہ جو رد عمل ہے وہ دے گی کہ کس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور کن الزامات کی بات کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ابھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے باضابطہ ان کا رد عمل بھی سامنے آنا ہے کہ کون سے تھانے میں ان کو رکھا گیا ہے، کون سی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں ابھی بعد میں سامنے آئیں گی۔ لیکن ابھی تک تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اس کی مذمت نہیں کی گئی، البتہ تحریک انصاف کی جو بطور پارٹی ہے اس کی طرف سے اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، اور یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ شہباز گل کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے۔ اچھا، یہ بتائے گا کیا ایگزیکٹ وجوہات معلوم ہو سکی ہیں کہ انہیں کس بیس پر گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں، گزشتہ روز شہباز گل نے ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر ایک دیپر دیا تھا، اور اس کے اندر کچھ ایسی باتیں کی تھیں جس کے اوپر حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ بات کی ہے، اور ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی حوالے سے ان حساس ادارے کے خلاف کچھ باتیں کرنے اور ان کو بغاوت پر اکسانے سے متعلق جو الزامات ہیں ان کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے، لیکن باضابطہ طور پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے ابھی تک نہیں آگاہ کیا گیا، نہیں بتایا گیا کہ پریس ریلیز یا پھر کچھ ایسی چیز نہیں جاری کی گئی ان کے ترجمان کی جانب سے کہ شہباز گل کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن اس بات کو کنفرم ضرور کیا گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے انہیں آج عمران خان چوک بنی گالا سے جب وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد واپس جا رہے تھے تو انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ اچھا، یہ بتائے گا کیا معلوم ہو سکا ہے انہیں کہاں منتقل کیا گیا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک پولیس نے انہیں نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کیا ہے، لیکن کچھ دیر تک امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو باضابطہ طور پر حوالات میں بند کیا جائے گا، اور اس حوالے سے اسلام آباد پولیس باضابطہ آگاہ بھی کرے گی۔ لیکن جو تصاویر اور ویڈیو سامنے آئی ہیں، پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ بغیر یونیفارم کے کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے اریسٹ کیا ہے، لیکن جو تصاویر اور فوٹیجز سامنے آئی ہیں اس میں اسلام آباد پولیس کی گاڑی اور ان کے جو اہلکار ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے، اور جو اسلام آباد کے بنی گالا کا علاقہ ہے وہاں سے عمران خان چوک سے انہیں اریسٹ کیا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات ہیں اور جو پولیس کے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو حساس اداروں کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کرنے کے الزام کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گزشتہ روز شہباز گل نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے حساس اداروں سے متعلق کچھ نامناسب بات کی تھی، جس کے اوپر یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو اب اسی کارروائی کے سلسلے میں انہیں آج گرفتار کر لیا گیا ہے، اور
नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने ही उन्हें गिरफ्तार किया है। अच्छा, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किए गए हैं गद्दारी की या इस हवाले से कुछ और? देखिए, जो इस्लामाबाद पुलिस है, उन बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया कि उनको जो है वो गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है और किस मुकदमे में और किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नहीं बताया गया। सिर्फ ये कन्फर्म किया गया है कि उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल किया है। और पुलिस ज़राए से इस बात को कन्फर्म जरूर किया गया है कि इदारों के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज अदा करने और उनके अंदर बगावत पैदा करने से मुताल्लिक़ उन्होंने निजी टीवी चैनल के ऊपर गुफ्तगू की थी, इसके इल्जाम में उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ किस थाने में मुंतकिल किया गया है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ आजम स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बीबी पूरा पाकिस्तान जो है, बल्कि बैरून मुल्क पूरे पाकिस्तान से इस वक्त जो है आप यकीन करें कि हमारे टेलीफोन जो है ये ऑलमोस्ट भर चुके हैं, जगह जगह से ट्वीट आ रही है। इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई जिल्लत वाला ये काम जो है इन्होंने किया है और इससे यकीन करें कि मुल्क पाकिस्तान की जमहूरियत कतन भी जो है वो आगे नहीं जा सकती, बल्कि इससे और धचका जो है वो लगेगा। इसलिए कि ये रवायात गलत रवायात हैं और इस सपोर्टेड हुकूमत के चंद मदारियों ने ये कहा था कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। आप ये देखें, ARY को बंद कर दिया, दूसरों के ऊपर जो है आप लोगों के ऊपर क्या कदम जो है लगा रहे। क्या इनके इस ओछे हथकंडों से मुल्क पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? गरीब जो इस वक्त महंगाई के ईंधन के अंदर जो है पिस रहे हैं, क्या उनको कोई फायदा होगा? क्या इनकी हुकूमत को जो है सवालत मिलेगी? कतई नहीं। इंशाअल्लाह ताला इससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी और आगे बढ़ेगी और डॉक्टर शहबाज गिल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जिस वक्त गिरफ्तार किया गया है, जिस कदर भी मजम्मत की जाए वो कम है। और इंशाअल्लाह PTI के लोग, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान एक कौम की हैसियत से डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो है खड़ा है और हम इंशाअल्लाह ताला तलाश कर रहे हैं कि सपोर्टेड हुकूमत से, क्योंकि चंद ही थानों तक से ये महदूद है। पंजाब नहीं ले सकते, KPK नहीं लेके जा सकते, आजाद कश्मीर नहीं लेके जा सकते, गिलगित बल्तिस्तान नहीं लेके जा सकते। यही 24 किलोमीटर के अंदर है, तो यहाँ कहाँ सर अपना छुपाएंगे? और ये होगा तो हम एक बजाय दो की बजाय 3 कानून के दायरे के अंदर रहती हुए, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए इंशाअल्लाह ताला हम गिरफ्तार करेंगे। हम आप तलाश कर रहे हैं उसको और इंशाअल्लाह ताला जो है इनको जिल्लत मजीद उठानी पड़ेगी और इस अछूते हथकंडे से ये कभी भी कामयाबी के सफर जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, आजम स्वाति साहब, ये कहेगा कि हुकूमत से मईशत तो कंट्रोल हो नहीं रही, दूसरी जानिब अब गिरफ्तारियों का सिलसिला जो शुरू कर दिया गया है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत किसी बौखलाहट का शिकार है? 13 अगस्त की जलसे की कॉल भी दी गई है इमरान खान की जानिब से, इससे पहले मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? देखें, इससे हम हर वक्त तैयार हैं, क्योंकि ये चीज जो है हमने अपने दायरे के अंदर जो है, दायरे के अंदर जो है ऑलरेडी डिस्कस किया, हमारी चीज के लिए तैयार है कि जिससे इनकी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, नाजायज हुकूमत की के दौर को जो है सवालत मिले। ये आवाम को रिलीफ देने की बजाय अब इस फिक्र के अंदर हैं कि जो अब इन्होंने जेली तौर के ऊपर अपना नैब का ये जो कानून में जो तरामीम की हैं उसको किसी तरीके से जो है ये रिलीफ ले सकें। सारे जितने आपके इनके ऊपर जो मुकदमात हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, ये किसी तरीके से जो है उनको पायदार मील तक पहुंचाने के लिए जो है ये सरगर्म है। इसलिए ये कोशिश करेंगे कि जितना अरसा हो सके कम से कम जो है उस पुरानी तनख्वाह के ऊपर जो है ये काम करेंगे। इनको अवाम के रिलीज से, महंगाई से, इनको इस वक्त सैलाब की जो हालत है आपके सिंध के अंदर जो है, कराची के अंदर, आपके बलोचिस्तान के अंदर, जगह जगह पे इनको उस कदर कोई परवाह नहीं। एहसास प्रोग्राम जिस तरीके से जो है उसकी धज्जियां इन्होंने उड़ाई क्योंकि वो गरीबों का प्रोग्राम था। तो अब ये कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला सीसा पटाई दीवार की तरह इनके सामने खुदा के फजल से खड़े होंगे। डॉक्टर शहबाज गिल जो है ये अब आवाम की आवाज है, ये आवाम की उमंगें हैं, आवाम का करदार है, आवाम का ज़मीर है। इसको कम अज कम अब किसी तरीके से जो है वो दबाया नहीं जाता और इसकी मैं शदीद मजम्मत एक बार फिर करता हूँ।
ठीक है, आजम सवाती साहब ये कहेगा कि आप तक इत्तलात क्या पहुंची हैं, शहबाज गिल को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है, और क्या पीटीआई कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाने जा रही है? इसको जो है पहले सबसे पहली बात तो ये है ना कि इनको इमरान चौक से जो है इमरान खान चौक जो है वहाँ पे बनी गाला में वहां से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हम आप तलाश कर रहे हैं कि कौन से थाने में, और इंशाल्लाह ताला मैं अभी भी घर से निकला हूँ और तलाश कर रहा हूँ कि कहाँ पे होंगे, और जहाँ इत्तला मिलेगी इंशाल्लाह हमारे बरकत वहाँ पहुंचे। आजम सवाती साहब ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें गद्दारी की दफात भी शामिल की गई हैं। माशाल्लाह ये सब कुछ करेंगे इसलिए कि जो अपने आप को रिलीफ देने के लिए, अपने जराइम को खत्म करने के लिए नेब के कानून में इस उजलत से तब्दीलियां जो है लेके आ सकता है, तो दुनिया में हर काम करने के लिए तैयार, ये बगावत भी करेंगे, ये टेररिज्म के मुकदमात जो है ये तैयार करेंगे, हम हर काम के लिए तैयार हैं, इसलिए कि इनके दिन गिने चुने हैं और अब जिल्लत और रसवाई इनका मुकद्दर बन चुकी है। पंजाब की 3/4 अक्सरियत जो हमने जीती है, अब उसके बाद ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। ये 9 मजीद हलकों के ऊपर जो इलेक्शन कराने के लिए जा रहे थे, जब इमरान खान ने कहा कि मैं उसके ऊपर इनका अकेला मुकाबला करूंगा, तो इनकी हवा निकल चुकी है। अब इनके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं। अब इंशाल्लाह ताला जिल्लत और रसवाई इनका मुकद्दर बन चुकी है, और इसी तरीके से जो है पाकिस्तान की आवाम जो है अपना जो मजबूत एहसास के जरिए, मजबूत हिम्मत के जरिए जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला इनका जवाब दिया जाएगा। और मैं जल्दी में हूँ ताकि जल्दी से जो है कहीं से तलाश करें, उसके बाद अब अपना दूसरा कदम जो उठाने के लिए अपनी हिकमत अमली का जो है इंशाल्लाह ताला याद करें। ठीक है, आजम सवाती साहब बस ये आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, 13 अगस्त को क्या होने वाला है? पीटीआई की जानिब से हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है कि इलेक्शन की कॉल दी जाए। अगर हुकूमत नहीं देती इलेक्शन की तारीख, फिर पीटीआई क्या करने वाली है और जलसे में इमरान खान क्या ऐलान करने वाले हैं? देखें, ये बहुत अर्ली है, इसके ऊपर जो है इस वक्त मीटिंग ऑफ द माइंड हो रहा है। इस वक्त हम सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा कदम उठाएं, क्योंकि हम जो कह रहे हैं ना कि 1 महीने के अंदर जो है ये ऐलान करें, ये कोई गैर कानूनी गैर आनी काम है नहीं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरीके से हैंडलर्स ने लाई है वो अवामी मैंडेट नहीं है। अवामी मैंडेट हमारे साथ है, 155 लोग जो है वो हमारे साथ थे, वो असम्बली से बाहर निकल चुके हैं। अब लेजिटिमेसी जो है उस नेशनल असम्बली की कोई भी नहीं, इसलिए हमारे सामने जो है सारी चीजें सामने है कि कौन सा कदम उठाएं, किस तरह उठाएं, कितना जल्दी उठाएं, ताकि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को इन जालमों के नुकसान से मजीद बचाया जाए, और आईन और कानून की हुकूमत हो जिसके अंदर जो है अवामी एक मैंडेट जो है वो सामने आए, और हम इस जमहूरी काम को जो है वो आगे लेके जाएं, जमहूरियत को आगे लेके जाएं, और मुल्क जो है कम से कम सुख का सांस ले। तो उसके लिए इंशाल्लाह हिकमत अमली तय कर रहे हैं कि कौन सी चीज हम पहले करेंगे, कौन सी चीज बाद में करेंगे। ठीक है, आसम सवाती साहब, इसके अलावा हुकूमत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भी लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा कर रही है। आपकी कानूनी माहिरीन से मुशावरत चल रही है? पीटीआई की कोर कमेटी की क्या होने वाला है, आगे लाहेअमल क्या करेगी पीटीआई? बीबी, मैं तो एक कानूनी का तालिब इल्म हूँ, इसलिए जो है पार्लिमानी बूथ का वजीर भी था, और इसलिए सारा जितने लॉ एंड जस्टिस कमेटी है या दूसरी कमेटी है जहाँ पे आपके जजेस को और आपके हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पार्लिमानी कमेटी है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। बुनियादी तौर पे इनके पास कुछ भी नहीं है। जो भी इस इलेक्शन कमिश्नर ने, मुतनाज़ इलेक्शन कमिश्नर ने जो भी जजमेंट जो है, बल्कि इन्होंने जजमेंट जो है उसको लिखा के दी है, इंशाल्लाह ताला इसकी दजी उड़ेगी खुदा के फजल से। हम हर कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे, हर जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे, और चूंकि आवाम की कुव्वत खुदा के फजल से अब इमरान खान के साथ है, तो हमें किसी डर और फिक्र की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पॉपुलरिटी उसकी दिन ब दिन जो है ये बढ़ रही है। दिन ब दिन लोग ये देख रहे हैं किस तरीके से ये आए थे, क्या करने के लिए आए थे, क्या रिलीफ जो है आवाम को मिला, और क्या रिलीफ उन्होंने अपने लिए जो है मुख्तस किया। इंशाल्लाह ताला जो है लोग भी देख रहे हैं और हम भी अपने कदम जो है आगे बढ़ा रहे हैं।
सही। आसम सवाती साहब 92 न्यूज को वक्त दे रहे थे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान के 9 नशिस्तों पर अकेले मुकाबले के ऐलान के बाद हुकूमत बौखला चुकी है और आसम सवाती की जानिब से डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई है। हमारे नुमाइंदे फहीम अख्तर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से राब्ता करेंगे। फहीम अख्तर, बताएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है, गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई? देखिए, जो जराए हैं उसके मुताबिक जो चीज सामने आई है कि डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है थाना बनीगाला में और उनके ऊपर जो है वो रियासत मुखालिफ बयानात देने और इदारों के अंदर बगावत डालने का इल्जाम दर्ज रखा गया है। और ठीक है फहीम अख्तर, आपसे दोबारा तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल साहिबा ने। सादिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी आप, आज का दिन बहुत ज्यादा मोतबर यौम आशूर है और फिर दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी का अमल शुरू कर दिया गया है और फिर बगावत का मुकदमा शहबाज गिल पर जारी किया गया है? देखिए, बिल्कुल बहुत ही अजीबो गरीब के वाकयात आप देख रहे हैं, यके बाद दीगरे आपको इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। ये जो आज भी हुआ है इंसिडेंट, एक तो सिरे से इसकी कोई तुक नहीं बनती है, इसकी कोई समझ में नहीं आती है। इल्जाम जो अभी तक सामने आ रहे हैं वो आपको भी, आपके भी इल्म में है कि यहाँ पर तो किसी पर कोई भी इल्जाम लगा के गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ पर तो लोगों पर गद्दारी के मुकदमे भी बनते आए हैं, यहाँ पर तो लोगों पर कुफ्र के फतवे भी लगा दिए जाते हैं। तो ये वाली जो एक्सक्यूजेज इस वक्त दी जा रही हैं, ये किसी सूरत भी ये जो माहौल इस वक्त मुल्क में बना हुआ है, जिस किस्म की इंस्टेबिलिटी है, इसको कहीं से भी खत्म नहीं करेगी, कहीं से भी कम नहीं करेगी। ये अजीब और गरीब किस्म के जो हथकंडे इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, ये पाकिस्तान को आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि ये कौन एडवाइजर्स हैं, कौन लोग जो हैं ये इस किस्म के मशवरे देते हैं। आज आपने उनको, ये मेरे ख्याल से 1 महीने से कम के अंदर उनकी दूसरी गिरफ्तारी है ये शहबाज गिल की। आपने चले पहले वाले में उस दिन इलेक्शन का एक बहाना था, एक कैंपेन हो रही थी, आपने कहा कि वहां पहुंच गए, वो भी हम उस वक्त ट्रांसमिशन कर रहे थे, हम कहते थे ये भी नहीं होना चाहिए था, वो भी बहुत अननेसेसरी था, गैर जरूरी किस्म की चीज हुई। और आज वाला तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। और देखें, जो आप मनाजर दिखा रहे हैं, ये कौन सी गिरफ्तारी ऐसे होती है कि किसी की गाड़ी आप तोड़ दें, गाड़ी के आपने शीशे तोड़ दिए हैं, एक उनके साथ जो असिस्टेंट है उसको आप जदोकोब कर रहे हैं, उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, घर को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। सादिया साहब, कता कलामी की माजरत, हेडलाइंस की जानिब जाना है, हेडलाइंस का वक्त हो गया, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, फहीम अख्तर भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया।